those steps are not sufficient for the fast or the rapid or the high rate of growth of rural sector, rural industry sector, related to its performance, related to its impact on the rural areas or village society, as well as contribution in the economy. At the same time, in various countries, this rural sector significantly, rural industry significantly contributed in the development of country. Example is China and Japan. So I am going to describe few regions which I have observed from various literature or from various references. These points are, there are always scope. So maybe these points are not sufficient. So whatever points I describe here, you people can add few other things or few points which are not mentioned here. You can add points which I have not described. So that will be the perfect packet of the reason or the factors which are responsible for the slow growth of rural industries. So whatever points I will describe here, maybe they are not sufficient. Maybe someone, from other point of view, maybe they are not perfect for the reason of the slow growth of the rural industry. So whatever you feel, whatever factor you can, you feel, you can add all those factors in your analysis or in your for your understanding purpose. So the first factor which is responsible for the inadequate responsible for the slow growth of rural industries is the inadequacy of financial assistance. Whatever financial assistance provided to the rural industries, all that financial assistance are not sufficient. It means that whatever government allocated for rural industries, for development of rural industries, during its different 5-year plan, all that financial assistance was not sufficient. तो फर्स्ट पॉइंट जो हम यहाँ पे रीजन में ले सकते हैं स्लो ग्रोथ रूरल इंडस्ट्रीज के लिए, वो है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्लान किया गया, प्लान वाइज जो अलॉट किया गया, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस सफिशिएंट नहीं था या गवर्नमेंट ने कम फंड एलोकेट किया. द फर्स्ट एग्जांपल we can take that during first 5-year plan, the share of village and small scale industries in total plan expenditure was only 2.5%. It was very less percentage. And during second plan, the government increased that percentage from 2.4 to 4%. And but later on, government not emphasized on this rural industries. So that share of fund in fifth plan, means from third, fourth, fifth plan,
declined. From fourth year plan, it was 4%, and after that it started declining, and that share was only 1.33% in the fifth 5-year plan. After fifth 5-year plan, again government maintained that expenditure level at only 2%. So this we can say this is the reason of slow growth is mainly because of the government program or policies. They have not emphasized much on this rural industry. Also, a very low share of village and small industries in central allocation as compared to the vast requirements is indicative of the negligence of the government. Second, we can point out that ineffective common production program and assistance to small units. The main objective of the common production programs related to the industrial sector protect small units from the competition of the large units. But there are a large number of instances. One of them is power loom sector, handloom and power loom sector. So government want to protect such type of village level industries, small scale industries like handloom sector, but at the same time they allow power loom. So what happened that big industrialists also set up small units and reap the benefits. And what are these benefits? These benefits are like tax rebate and assured supply of raw materials, which generally offered by the state to small units. This further weakened the competitive power of the cottage industry or household level enterprises, as well as vis-a-vis large enterprises. So even small entrepreneurs, the growth of power loom adversely affected the handloom weavers, as well as from production to profit, because this handloom and power loom both produce similar products, but the cost of production is less in power loom, and in handloom the cost of production is compared to this power loom is very high. That's why in the market power loom products having low prices. तो इसका इफेक्ट ये होता है कि जो हैंडलूम वीवर्स हैं वो हैंडलूम वीवर्स पावर लूम से कंपटीशन फेस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से बहुत से इस तरह के जो विलेज लेवल या जो रूरल ओरिएंटेड विलेज ओरिएंटेड एंटरप्राइजेस थे या जो स्मॉल यूनिट्स थी वो धीरे धीरे बंद हुई या वो उतनी तेजी से फैल नहीं थी। और बेनिफिट किसको मिला? बेनिफिट goes to those enterprises which having means they are big industrialists. So these programs on several occasions became counterproductive in nature.
Then mismatch of the technology, upgradation, training and skill formation. We can say that repeated emphasis has been made on the upgradation of technology, training towards artisans and small entrepreneurs. Excuse me, sir. For सर yes, पूरा स्लाइड ब्लर आ रहा है, क्लियरली दिख नहीं रहा है। स्लाइड आपको दिख नहीं रही है? मतलब दिख रहा है बट रीड नहीं कर पा रहे हैं क्लियरली। अब ठीक है। ओके, थैंक यू सर। अभी दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। ठीक। So the whatever upgradation of technology and training given to artisans and small entrepreneurs for the development of rural industries during various plans, all those are generally repeated. They are repeating the same things during different plans. So far as technology generation or its upgradation for small industries is concerned, the performance of the national or regional or rural and development, national level or regional level rural development institutes was not satisfactory. तो जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन या फिर जो ट्रेनिंग दी जा रही थी स्मॉल इंडस्ट्री से संबंधित नेशनल लेवल पर और रीजनल लेवल पर रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे। ओनली a limited number of new or improved technologies provided to the this handloom. We are discussing about this by taking this handloom example. So like jacquard loom, that technology is given to only limited sector, like handloom or power loom, jacquard loom. Then in food processing industry, few technology provided, as well as ceramic work or leaf plate machines. So these are only limited to, means whatever new technology or improved technologies available to the rural industry sector, they are not available to all sectors, only few items, only for few items. So these technologies and some imported ones were supplied to the entrepreneurs through National Small Industries Corporation. And for that matter, technical and financial marketing assistance were provided to small industries service institutions. With their decentralized body, there is in every district there is district industry center, DIC. So through DIC, all this technology transferred to the rural industries. Though DIC also provide all these services to urban located industries, they cover rural as well as urban industries. But DIC is an organization which worked at district level. The role of DIC is to assist industries in that particular district, either situated in rural areas or in urban areas. Excuse me, sir. So problem of The DIC available in every district. district in centers. Yes, sir. How they work and is that available in every That district? is, what is your name?
Sir, Udit Kumar. Udit Kumar ji, that will covered under the topic given in your syllabus later on. Okay, sir. Please don't deviate from the topic which I am discussing here. Yes, sir. So problem of technology diffusion arose at two levels. Firstly, unlike we have seen in China, where new technology diffused through direct exchange between the source and destination. The source and the destination, where that technology is created. And how means to whom we have developed that technology, how we will provide them. So those source and destination, who are going to use that technology. So the source organization directly trained the workers of the user organization, means where that technology will go, destination of that technology. We can say industry, for which industry that technology is developed. So the workers of the user organization while providing technology. But in our country, there existed a layer of bureaucracy in between these. There are many organizations. One where a technology is initiated, research and development institute or laboratories or lab, then a layer of bureaucracy. There exists a layer of bureaucracy in between organization as well as where the technology is used for diffusion. So there is a mediator which often obstructing the diffusion of the exact information regarding technology. So if we change this system, that where we are going to create that technology that directly transferred to the end user or that particular production unit, that will be more benefited to the this rural sector, rural industry. So this bureaucracy lack personnel of the required expertise for various type of technologies which are useful for the rural development, rural industry, and therefore could not transfer the entire technology package, including skills and other information. So in other words, we can say that technology linkage between the research and development institutes and entrepreneurs is not direct. In China, where the mass scientific organization kept the people informed about new technologies and thereby helped diffuse technology. ये बात अलग है कि चाइना में उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से ही आज पूरा वर्ल्ड जो है तरीके के पैंडेमिक में फंसा हुआ. बट द सिस्टम विच दे हैव डेवलप्ड, that system is useful, means whatever technology they are developing, they are directly transferring, or we can take it in this way that in every production units they have separate research and development, and they worked for that means work for the development of new technology, so that the time lag between adoption of new technology in that production process can be saved, or time can be saved for the immediate use of the new technology. In India, similar organizations do not exist. The information was provided by DICs or other organizations which rarely had contact with the masses.
Second is in India, industrial training was provided by the institutes like ITI, Polytechnic, engineering colleges, which often have no direct contacts with the enterprise employing the technicians. They only trained some, means they only provide education, technical education, but they are not directly in contact with the product manufacturing units or industries. If they create atmosphere in a way that whosoever is graduated from these type of organizations, they can get financial assistance through the institutions where they are getting that knowledge, that degree. Either it is ITI or it is Polytechnic degree, so that immediately fund is available with them, immediately raw material they can, these institutes can arrange for those who have graduated from their institutes. ITI या पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ऐसे स्टूडेंट्स जो खुद का इंटरप्राइज स्टार्ट करना चाहते हैं या खुद की प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं, इन इंस्टीट्यूट्स में कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाए कि इन्हें इमीडिएट फाइनेंशियल असिस्टेंस बैंक से विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही अवेलेबल हो जाए, उसी इंस्टीट्यूट में रहते ही मिल जाए, अगर वो अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, या रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी इनको प्रोवाइड की जाए। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स, ऐसे इन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे सेंटर्स ओपन किए हैं जिनमें इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, लाइक अटल इंक्यूबेशन सेंटर। मोस्ट ऑफ द आईआईटीज आर हैविंग इंक्यूबेशन सेंटर। तो इन इंक्यूबेशन सेंटर में जो भी स्टूडेंट्स या जो भी ग्रेजुएट्स कुछ अपना स्टार्टअप लेना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, वो कांटेक्ट कर सकते हैं अपने आइडियाज के साथ, और ये इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से बैंक्स की फाइनेंसिंग गवर्नमेंट की तरफ से एंड रॉ मटेरियल और वो सारी चीजें उन्हें प्रोवाइड की जा रही है। तो रिसेंटली इंडिया में स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स बहुत सारे जो कॉलेज ग्रेजुएट, टेक्निकल ग्रेजुएट थे, उनके द्वारा शुरू किए गए। The activities, there are three types of organizations: those who generate technology, those who generate technology, second who use technology, and third who train workers in operating technology. All these organizations are not in coordination with each other. आपको ट्रेनिंग लेना है तो आपको ट्रेनिंग देने के लिए कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, जो टेक्नोलॉजी को यूज करने जा रहे हैं वो कोई और लोग हैं, और टेक्नोलॉजी जिनकी तरफ से डेवलप जा रही है वो कोई और लोग हैं। ये सिस्टम हमारे यहाँ। सो द टेक्नीशियंस सर्टिफिकेट होल्डर्स आर एलिजिबल फॉर बैंक लोन under self-employment scheme, but they do not have the entrepreneurial ability. But the artisans who rarely find opportunity to study technical courses acquire their skills as apprenticeship in the family craft or other craft. तो जो रूरल आर्टिजन है वो अपने फैमिली में ही वो सारी नॉलेज को मिल रहा है, फैमिली से ही वो सीख रहे हैं, बट उनके पास एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी का प्रॉब्लम है। इसी तरीके से उनको बैंक से कैसे फंड मिलेगा या फाइनेंस कैसे अवेलेबल हो पाएगा उसके बारे में नॉलेज नहीं है। सो अनलेस सर्टिफिकेट्स ऑफ स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, द स्किल ऑफ द आर्टिस्ट्स आर नॉट सर्टिफाइड बाय एनी फॉर्मल इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। तो आर्टिजन्स के पास नॉलेज है, आर्टिजन्स के पास स्किल है, बट बैंक फंडिंग एजेंसी को चाहिए सर्टिफिकेट। आर्टिजन्स किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग नहीं लिया हुआ है जहां से उसे सर्टिफिकेट मिले, क्योंकि वो अपने फैमिली ट्रेडिशन से ट्रेनिंग उससे मिल रही है।
और जो ट्रेन पैटर्न प्रोवाइड की जाती है। तो जिसके कारण से जो हमारा रूरल सेक्टर में जो रूरल आर्टिजनल इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत प्रॉपरली ग्रो नहीं करते। सो जो परिवार से जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन या टेक्नोलॉजी मिल रही है या जो नॉलेज मिल रहा है उसके बेसिस पे बैंक लोन नहीं देगा, जिसके कारण से जो रूरल इंडस्ट्री है वो ग्रो नहीं कर पाया। इन जनरल न्यू और improved technologies, both RDCs are modern small scale, are highly compensative, and without financial assistance, they could hardly be adopted by the poor RDCs entrepreneur. तो अगर ट्रेडिशनल फैमिली आर्ट वर्क से जुड़ा हुआ कोई एंटरप्रेन्योर है, वो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी यूज करना चाहता है। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी डेफिनेटली हाईली एक्सपेंसिव, जिसको कि विदाउट फाइनेंशियल असिस्टेंस उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाना मुश्किल है। ये हमारे देश की प्रॉब्लम रही है। जबकि जापान एंड चाइना में क्या है कि लार्ज इंटरप्राइजेस असिस्टेड स्मॉल इंटरप्राइजेस। अगर कोई बड़ी संस्था है जो उस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रही है, सेक्टर में काम कर रही है, तो वो संस्था जो छोटे इंटरप्राइजेस हैं उनको फाइनेंस as well as raw material, as well as technology upgradation, even marketing and training, ये सारा असिस्टेंस देती है। इंडिया में इस तरह की चीज है, बट वो कुछ लोकेशंस में ही है। जैसे वेस्ट बंगाल में हैंडलूम सेक्टर में ऐसा कुछ जगहों पे है, या जो भी डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया में होगा वो इस तरह का कोई बहुत बड़े लेवल पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है। द लैक ऑफ इफेक्टिव लिंकेजेस विद अदर सेक्टर। अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्ट इंटरवेंशन बाय द स्टेट, देयर एग्जिस्ट अदर फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस दिस रूरल इंडस्ट्री। There is forward and backward linkages. Rural industries as well as agriculture sector. In China, it has been observed that these rural industries are connected with the agriculture sector. Rural industries supporting agriculture sector by providing goods are produced related to the agricultural sector. Similarly, raw materials and agriculture sector output is connected with the means all these outputs are used in rural industry. तो अगर रूरल इंडस्ट्री को हम प्रमोट कर रहे हैं तो that rural industry is helpful for the development of agriculture sector by providing new products, by providing improved inputs which can be used into rural sector, into agriculture sector. Similarly, those rural industries may use raw materials as an input which are the produce of the agricultural output, agricultural sector, or farm producers. And also, this rural industry will provide job opportunity to the rural people, and that will enhance the income level. So there is forward and backward linkages in between rural industries and agriculture sector. It has been observed in China more frequently. These industries also provide consumer goods as well as construction materials. They have also a connection with that urban factors and rural setup.
जैसे टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर है, अर्बन से रूरल में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इंडिया में क्या है कि देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ research conducted by different researchers. This type of linkages are very limited, very less, and that is the one of the major factor in slow growth of the this rural industry in India. The next topic. So, any confusion or any clarification you people want? कुछ कंफ्यूजन तो था बट भूल गए वहाँ पे जो आप कोई वर्ड यूज किए थे, पावरलूम और हैंडलूम में ज़ैकार्डलूम। इससे ज़ैकार्डलूम एक तरीके का गवर्नमेंट की तरफ से उस समय जो साड़ी या वीविंग का जो काम करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज रेट पे स्मॉल यूनिट्स को और जो बड़े लेवल पर जो प्रोडक्शन कर रहे थे, जिनके पास ज़्यादा 2-4 मीन्स जिनके पास ज़्यादा लूम है, जिसको हम कह सकते हैं, तो जो बड़े हैंडलूम ओनर हैं, जैकार्डलूम उन्हें आसानी से वो आसानी से ले पा रहे हैं, या जैकार्डलूम की टेक्नोलॉजी बार बार रिपीटेड वे में दी जा रही है। तो ये एक तरीके का वीविंग का एक मशीन है, लूम एक तरीके से इसको नाम दिया गया जैकार्डलूम, जिसपे साड़ी और ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। ये है, ठीक है। ओके सर। सर कुछ चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही हैं, आप थोड़ा फास्ट चले जा रहे हैं, हम लोग बीच में बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो मतलब आप कहीं कहीं क्या पे बोलना चाहते हैं बीच में? कहीं कहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, बट हम लोग चैट में लिख भी नहीं पाए हैं, चैट ऑफ था। वो जो टर्म आप बता रहे थे DIC करके कुछ, उसका वर्किंग जो परफॉर्मेशन था। DIC का मेन काम ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल इंडस्ट्री हर जिले में एक जिला उद्योग केंद्र, जिसको हम लोग कहते हैं, जिला उद्योग केंद्र का जो फंक्शनिंग है, वो जो असिस्टेंस देने का काम करता है। एक तो काम ये है कि वो किसी कोई अपना खुद का उद्योग लगाना चाहता है, तो वो उसको लाइसेंस कहाँ से मिलेगा? ऐसे तो नहीं है ना कि आप कहीं कोई इंडस्ट्री लगा कर काम शुरू कर देंगे, तो आपको लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस लेने के लिए कुछ पेपर डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस DIC की तरफ से बनाए गए हैं, और DIC उस फॉर्मेट को देखने के बाद कि कोई एंटरप्रेन्योर हमारे पास अपना बिजनेस लगाने के लिए आ रहा है, तो हम उसको इन चीज़ों को वेरीफाई करें और देन उसको लाइसेंस दें। और लाइसेंस देने के साथ उसको फिर इंश्योर कराना, फिर रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल उसको आसानी से हो पाए, देन फाइनेंशियल असिस्टेंस, देन टेक्निकल असिस्टेंस, देन मार्केट, ये सारी चीज़ों को फैसिलिटेट करना या उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना, ये काम डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर का होता है। तो DIC की तरफ से, क्योंकि जब हमारे यहाँ रूरल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट की बात की जा रही थी, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे सेटअप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्टार्ट किए गए। वो आपके सिलेबस में सब लिखा है। जो आगे की यूनिट्स हैं उसमें ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में उनका जिक्र आएगा और उनके बारे में लोग बात करेंगे।
तो ये DIC एक तरीके से वो संस्था है जो जिसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रूरल एरिया में जो इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रॉपरली उनको गाइड नहीं कर पाना, या उनको गाइड कर रहे हैं तो और जो दूसरी समस्या है उनको साड़ा उठा, क्योंकि DIC को अर्बन इंडस्ट्रीज और रूरल इंडस्ट्रीज दोनों को ध्यान में रखना है, तो इसलिए इनका फोकस रूरल एरियाज की तरफ से बहुत ज्यादा नहीं हो पाता। और जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया कि जो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किस तरीके से हो रहा है, इंडस्ट्री यूनिट यूज करने वाला कोई और है, डेवलप करने वाला कोई और है, और कहीं बड़ा कहीं और जा रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि हमारे यहाँ रूरल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में एक बाधा है, समस्या है, रूरल इंडस्ट्री जिसकी वजह से प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता। तो जो भी टर्म्स यहाँ पे आए हैं वो आगे उनका यूज होना है, उनको आगे हम लोग देखेंगे। ये मतलब जब ये दिस क्लास इज नॉट लास्ट क्लास, ये तो अभी दूसरा टॉपिक ही डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा तीसरा ही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी क्लास में अगर हम कहें कि नहीं ये सारी चीजें अब आ जाएंगी, तो मैंने आपको कहा कि मेन हमारा पॉइंट क्या है कि जो स्लो ग्रोथ ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज है उसको उसके रीजन क्या है, मैंने वो रीजन कुछ बताने की कोशिश की। मैंने पहले ही क्लास में ही स्टार्टिंग में ही कह दिया कि दीज आर नॉट ऑल रीजन, दीज आर ओनली फ्यू रीजन। बाकी के रीजन आप भी एनालाइज करके देख सकते हैं कि क्या क्या कारण है कि क्यों नहीं हमारे यहाँ विलेज में विलेज लेवल इंडस्ट्री डेवलप हो पाई, क्या क्या रीजन थे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। एनीवे द नेक्स्ट इज स्टेजेस फॉर इंप्रूविंग दिस रूरल इंडस्ट्रीज और रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। So there are various strategies by adopting this we can enhance the rate of growth, or we can improve the industries in rural areas. तो जब हम रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि कैसे वो स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं जिनके द्वारा हम अपने कंट्री में अपने रूरल एरियाज में हम इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं या इंडस्ट्री का डेवलपमेंट बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग ये देखें कि रूरल इंडस्ट्री के माध्यम से बहुत सारे ऐसे जो विलेज लेवल की प्रॉब्लम है, रूरल एरियाज में जो प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स को हम हैंडल कर सकते हैं। और रूरल एरियाज में जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है वो प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट की, जिसके कारण से वहां लो इनकम लेवल है। एम्प्लॉयमेंट प्रॉपरली ना होने की वजह से इनकम का स्तर गांव में बहुत निम्न है, नीचे का स्तर है, जिसके कारण से गांव में पॉवर्टी की समस्या है, गरीबी की समस्या है। तो अगर ऐसा अल्टरनेट वहां के लोगों को मिलता है, रूरल एरिया में लोगों को मिलता है, तो
डेफिनेटली जो गरीबी की स्थिति है, वो गरीबी की स्थिति को दूर किया जा सकता है। 90s के पहले हम लोग अगर डिफरेंट पॉवर्टी रिलेटेड एस्टिमेट्स देखें तो 40% से ज्यादा पॉवर्टी, 60% तक की पॉवर्टी का एस्टिमेट्स बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस ने किया, जिसको आप इकोनॉमिक सर्वे या जो इंडिया के 5 ईयर प्लान डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे आप देख सकते हैं। डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स में पॉवर्टी पे बात की गई है, पॉवर्टी पे एनालाइज करके उसके बारे में रिपोर्ट बनाई गई है। तो आप उनको देख सकते हैं कि क्या पॉवर्टी का लेवल है रहा है रूरल एरिया में। तो अब है कि अल्टरनेट, ये पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का अल्टरनेट हमारे पास क्या है? तो अल्टरनेट तो यही है कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाएं, इंप्रूव करें इंडस्ट्रीज को। तो अर्बन लोकेशन में जो इंडस्ट्रीज हैं उनको हम एज इट इज रूरल सेक्टर में तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो हमें ऐसी इंडस्ट्री चाहिए होंगी जो उस रूरल एटमॉस्फेयर के लिए सुटेबल हो। तो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसका हम लोग सिंपल मीनिंग ये समझ रहे हैं कि इंकरेजिंग लोकेशंस ऑफ लार्ज एंड स्मॉल स्केल यूनिट्स अवे फ्रॉम अर्बन एरियाज और प्लान शिफ्टिंग ऑफ यूनिट्स फ्रॉम अर्बन एरियाज टू रूरल एरियाज। अब रूरल इंडस्ट्रीज का मतलब ये भी नहीं है कि जो गांव में जो आर्टिजनल वर्क है उन्हीं को ही हम कंसीडर करें। अभी रूरल इंडस्ट्री जिस तरीके से पूरे विश्व में डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है और पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए भी हमारे लिए जो सेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था उसको डिसेंट्रलाइज्ड वे में प्लान करना होगा, ताकि हम और इंडस्ट्री डेवलप कर सकें या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डेवलप कर सकें, जो कि अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट सोर्स है वहां के लोगों के लिए। सो द प्लान शिफ्टिंग ऑफ यूनिट्स फ्रॉम अर्बन एरियाज टू रूरल एरियाज which provide employment, which provide income to remote areas, people living in remote areas. But this process is not likely that existing urban industries structure can be disturbed. तो अब इसके लिए क्या है कि therefore under rural industrialization the state should encourage industrialization in rural areas on a massive scale, but without disturbing the urban industrial structure or sector. So whether it is a small industry, large industry or village level industry, it means ये जो भी इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जा रहा है या रूरल एरिया में जिनको डेवलप किया जाए, इनको डेवलप करने के साथ साथ अर्बन एरियाज के सेटअप को भी एज इट इज ही रखा जाए। सो देयर शुड बी अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी which should be evolved that industries are encouraged in rural areas along with the urban industries. So, because in rural areas we know that huge resources available, which should be harnessed, जिनका उपयोग किया जाना चाहिए। और गवर्नमेंट का जो रोल है, गवर्नमेंट शुड क्रिएट फुल फ्लेज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज बिफोर इनिशिएटिंग एफर्ट्स इन दिस डायरेक्शन। Rural industrialization aims at all-round development of an area as well as people living in such areas. So this can be realized only through a systematic adoption of the improved technology, improved policy measures. There should be
harmony among primary sector means agriculture sector, as well as manufacturing sector and service sector in the process rural extension. तो जब तक हम तीनों को एक साथ कनेक्ट करके फोकस करके पॉलिसी नहीं बनाएंगे, तब तक हम रूरल डेवलपमेंट को प्रॉपर वे में, प्लान वे में स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। रूरल डेवलपमेंट को प्लान में हम नहीं कर पाएंगे। जो भी डेवलपमेंट होगा वो अनस्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट है। So the focus of rural industrialization should be alleviation of rural poverty by creating wide employment opportunities in rural sphere। तभी जाकर के हम रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं by adopting the rural industrialization। और अभी तक कोई ऐसा डायरेक्ट जो है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड कोई पॉलिसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं डिक्लेयर की। जो भी प्रोग्राम्स और पॉलिसीज हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हैं, जैसे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, KVIC। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, यूनिट में है, इसके बारे में हम लोग क्लास डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हैंडलूम सेक्टर है, सेरिकल्चर है, आर्टिजन्स रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, जिसमें अभी कई सारे प्रोग्राम प्रेजेंट गवर्नमेंट ने वीवर्स के लिए और दूसरे जो आर्टिजन्स वर्क हैं उनके लिए शुरू किया है। तो ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम कॉम्प्रहेंसिव नहीं है। ये प्रोग्राम क्या है कि एक तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन प्रोग्राम्स या पॉलिसीज को बना रहे हैं, तो वो उसी स्फीयर में काम करेंगे। जैसे KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के से संबंधित जो भी प्रोग्राम होंगे वो केवल और केवल खादी यूनिट्स, खादी रिलेटेड यूनिट्स के लिए ही वर्क करेगा। वो हैंडलूम के लिए नहीं काम करेगा, या वो सेरिकल्चर के लिए नहीं काम करेगा, या वो आर्टिजन्स के लिए नहीं काम करेगा। जो लोग खादी एंड विलेज इंडस्ट्री से जुड़ करके काम करना चाहते हैं, उन पे यही वो प्रोग्राम लागू होता है। सो इस तरह के प्रोग्राम्स का ऑब्जेक्टिव अलग है, वो ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न और सिस्टम ऑफ असिस्टेंस अलग है, जिसके कारण से हम उसको एक कॉम्प्रहेंसिव वे में रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन में के डेवलपमेंट में नहीं यूज कर पाते हैं। The focus of these schemes is either to develop industries or to develop target group, not to promote rural industrialization। उनको KVIC को प्रमोट करना है, उनको जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनके बेटरमेंट पे काम करना है, इसलिए वो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन एज ए होल उसके प्रमोशन के लिए काम नहीं करता है। एक तरीके से हम कहें कि एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है, लेकिन इन सबका आपस में कोऑर्डिनेशन अगर बेटर होता तो शायद हम और तेजी से रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते थे। तो हम अभी यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों के जो दो चार लोगों ने जो अभी पॉइंट्स रेज किया है कि वो एक तरीके से मोनोटोनस हो रहा है कि सर आप बोलते जा रहे हैं, हम लोग बीच में कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो कुछ लोगों को अंदर से है कि वो थोड़ा सा डिबेट टाइप में इसको लेकर चलना चाहते हैं। तो मैं अभी यहाँ पॉइंट्स है आपके पास, कुछ पॉइंट्स इस स्लाइड में दिख रहा है। तो अभी अब आप लोगों को बोलने के लिए मैं ऑफर दे रहा हूँ। देखिए आप लोग इस पे क्या अपने विचार, आपके विचार क्या है ना? तो शायद मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा और आपका पार्टिसिपेशन इसमें होगा। तो जस्ट आई एम गोइंग टू कन्वर्ट द कम्युनिकेशन, means I am going to start this lecture, I am going to change this lecture in way that now you people start this speaking। तो आप लोग 2 मिनट
आपके पास टाइम है? मैं देखता हूँ एक एक करके अभी शुरू करते हैं। ये ठीक रहेगा? नेक्स्ट क्लास में है सर 1 बजे से। So, 1 बजे से और किसकी क्लास है? सुशील आज 1 सर बजे से का। किसकी क्लास है? हाँ? सुशील सर की सुशील क्लास सर तो का। 11 से 12 थी। सुशील सर की क्लास तो 11 से ईमेल तो 12 आया है हम लोग का, हाँ? ईमेल पे आया हम लोग का उसी टाइम पे। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। ईमेल पे भेजा है उन्होंने? सर वो फ्री नहीं थे उस समय में, तो इसलिए उन्होंने बोला था कि 1 बजे क्लास है। अच्छा, तो ठीक है, 2 मिनट आप लोग रुके रहिए, अटेंडेंस लेने।